میں نے جان بوجھ کر ایسا لباس پہنا جو شاید میں زندگی میں کبھی پہننے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اس کے پیچھے ایک واضح مقصد چھپا ہوا تھا۔ مجھے امتحان لینا تھا کہ میرا نوکر مجھ سے کتنا وفادار ہے۔ اور پھر ایک شام میرے نوکر نے ضبط کی ساری حدیں پار کر دیں اور جو کچھ ہوا میرے لیے قابل یقین نہیں تھا۔ شاید یہ واقعہ یا یہ کہانی سننے والوں کو کچھ عجیب لگے، لیکن یہ سب کچھ اسی دنیا میں ہوتا ہے اور ہو رہا ہے۔ یہ کہانی میری ایک دور کی رشتہ دار کی ہے جو کم عمری میں ہی بیوہ ہو گئی تھی۔ یہ جان کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ کس طرح اس نے اپنے نوکر کا امتحان لینا چاہا۔ اس کے نوکر نے اس کے ساتھ کیا کیا، یہ واقعہ میں انہی کی زبانی بیان کر رہی ہوں۔ کم عمر افراد اگر یہ کہانی سن رہے ہیں تو وہ اسے یہیں پر چھوڑ کر جا سکتے ہیں، کیونکہ اس کہانی کو بیان کرنے کا مقصد صرف معاشرے کی عکاسی کرنا ہے۔ میرا نام رشیدہ تھا اور میں بہت ہی خوبصورت تھی۔ جو مجھے دیکھتا وہ مبہوت رہ جاتا تھا۔ میری خوبصورتی کے چرچے سارے خاندان میں ہوتے تھے۔ جو بھی مرد ایک دفعہ مجھے دیکھتا وہ پلکیں جھپکنا بھول جاتا تھا۔ لیکن قسمت کے معاملے میں بہت بد نصیب ثابت ہوئی تھی۔ نہ ہی روپے پیسے کی کوئی کمی تھی اور نہ ہی حسن میں میرا کوئی ثانی تھا۔ میرا قد کاٹ اور جسامت 14-15 سال کی عمر سے ہی اتنے بھرپور تھے کہ مجھ پر اٹھنے والی نگاہ جھکنا بھول جاتی۔ میں گھر سے نکلتی تو سارے مردوں کی نظریں مجھ پر جم جاتی۔ میری اسی اٹھان اور خوبصورت جوانی کی وجہ سے میرے ماں باپ کو میری فکر ستانے لگی تھی۔ میرے ماں باپ ویسے بھی جلد سے جلد میری شادی کر کے اپنا فرض پورا کرنا چاہتے تھے۔ دراصل میرا تعلق اپر کلاس سے تھا، جہاں رشتوں کی کوئی خاص حیثیت نہیں ہوتی۔ ہر کوئی ایک آزاد زندگی گزارنا چاہتا ہے اور میرے ماں باپ بھی میری شادی کے بعد ایسی ہی ایک آزاد زندگی چاہتے تھے۔ میرے باپ نے اپنے ایک کاروباری دوست کے بیٹے ساجد سے میرا رشتہ طے کر دیا تھا اور 18 سال کی عمر ہی میں رخصت ہو کر میں اپنے شوہر کے بڑے سے بنگلے میں چلی آئی۔ میرا شوہر بھی بہت خوبصورت اور جوان تھا۔ ہم دونوں ایک ساتھ کھڑے ہوتے تو لوگوں کی نظریں ہم پر ٹھہر سی جاتی۔ ہر کوئی ہماری جوڑی کو خوب نظر لگاتا اور میں یہ سوچ کر خوشی سے سرشار ہو جاتی کہ خدا نے میرے حصے میں بس ساری خوشیاں لکھ دی ہیں۔ اپنے ماں باپ کے گھر پر میں تنہائی کا شکار تھی، مگر اب ساجد کی محبت نے مجھے مکمل کر دیا تھا۔ لیکن میں یہ بھول گئی تھی کہ آزمائشیں بھی زندگی کا حصہ ہیں۔ میری اور ساجد کی شادی کو 3 سال ہونے والے تھے، لیکن خدا نے ہمیں اولاد کی نعمت سے محروم رکھا تھا۔ میرے ساس سسر ہر وقت اولاد کی خواہش کرتے اور میری ساس کی میں کافی حد تک بدلاؤ بھی آ گیا تھا۔ ان 3 سالوں میں ان کی محبت پہلے جیسی نہیں رہی تھی۔ ان کی ہر وقت یہی تمنا رہتی کہ کب میں انہیں خوشخبری سناؤں اور وہ خوشی میں جھوم اٹھیں، لیکن یہ سب میرے ہاتھ میں نہیں تھا۔ اولاد تو قدرت کی طرف سے عطا کی جاتی ہے۔ ہر طرح کے علاج کے باوجود بھی جب ہماری کوئی اولاد نہیں ہوئی تو میری ساس نے ساجد سے دوسری شادی کرنے کا کہہ دیا۔ ساجد مجھ سے سچی محبت کرتے تھے، اس لیے پہلے انہوں نے موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے۔ 2 سال کی بھری جوانی میں بیوہ ہو گئی تھی۔ اصرار اور دباؤ کی وجہ سے وہ مجھے لے کر ایک دوسرے بنگلے میں شفٹ ہو گئے۔ مجھے لگتا تھا کہ شاید اب زندگی میں کچھ بھی سکون نہیں، لیکن میری یہ سوچ محض چند دنوں کی مہمان تھی۔ ایک دن ساجد دفتر سے گھر لوٹ رہے تھے کہ بریک فیل ہونے کی وجہ سے ان کی گاڑی کا حادثہ ہو گیا اور وہ موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے۔ 22 سال کی بھری جوانی میں ہی میں بیوہ ہو گئی تھی۔ اتنے بڑے بنگلے میں میں اکیلے کیسے زندگی گزارتی؟ یہی سوچ کر عدت کے دن گزارنے اپنے ماں باپ کے گھر چلی آئی۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ رخصت ہونے کے بعد بیٹیاں پرائی ہو جاتی ہیں، بالکل سچ کہتے ہیں۔ عدت کے چند مہینوں میں ہی میری بھابھیوں نے مجھ پر یہ باور کروا دیا کہ میں ان کے لیے محض بوجھ کے سوا اور کچھ نہیں ہوں۔ اپنے خاندان کے عجیب عجیب لڑکوں کے رشتے وہ میرے لیے لے کر آنے لگیں۔ ابھی تو میں ساجد کی موت کے غم سے باہر نہیں آئی تھی۔ دوسری شادی کے بارے میں کیسے سوچ سکتی تھی؟ مجھے اچھی طرح اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ لوگ مجھے چند دنوں سے زیادہ برداشت نہیں کریں گے، جبکہ میری ذات سے انہیں کوئی تکلیف بھی نہیں پہنچ رہی تھی۔ ان کے تلخ رویوں کو دیکھتے ہوئے میں نے فیصلہ کیا کہ میں ساجد کے بنگلے میں واپس شفٹ ہو جاؤں گی۔ تنہا زندگی گزارنا ان منافقوں کے ساتھ زندگی گزارنے سے بہتر تھا، جو میرے منہ پر تو بہت اچھے تھے لیکن میری پیٹھ پیچھے مجھے صرف اپنی زندگیوں سے نکالنا چاہتے تھے۔
इद्दत मुकम्मल होने में मैं अपने बंगले में वापस आ गई थी। साजिद का कारोबार इनके बाबा ने संभाल लिया था और खर्चे की एक ख़ास रकम मेरे अकाउंट में बाकायदगी से ट्रांसफ़र हो जाती थी। मैं शुरू से ही नाज़ो नहम में पली हुई थी, इसलिए कामकाज की तो मुझे आदत नहीं थी। हमेशा नौकर चाकर मेरे आगे पीछे रहते थे, लेकिन इतने दिन बंगला बंद रहने की वजह से सारे ही मुलाजम काम छोड़ गए थे। तब मेरी एक पुरानी मुलाजमा मैके से ही मेरे साथ चली आई थी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी। इसने भी छुट्टी की दरख्वास्त की थी, लेकिन मैं उसके बगैर तो बिल्कुल भी गुजारा नहीं कर सकती थी। कहने लगी, बीबी जी मैं गाँव जाऊँगी तो वहाँ से अपने भाई को भेज दूँगी, वो आपके सारे काम काज कर दिया करेगा, आपका बहुत ख्याल भी रखेगा। मैंने उससे कहा कि पहले अपने भाई को बुलवा ले, फिर चली जा, ताकि उसे काम भी बता सकूं। वो फ़ौरन मान गई और उसने अपने भाई फैसल को गांव से बुलवा लिया। उसका भाई एक 17 साल का खूबसूरत और जवान लड़का था, जिसे देखकर मैं चौंक गई थी। मुझे तो लगा था कोई 13-14 साल का बच्चा उसका भाई होगा, लेकिन ये तो अच्छा खासा जवान लड़का था। मेरी मुलाजमा ने उसे घर का सारा काम समझा दिया था। वो लड़का बहुत ही भला था, बहुत तेज़ी से हाथ चलाकर सारे काम काज कर दिया था। 2 दिन में उसकी बहन ने उसको सारा काम समझा दिया। उसके बाद वो मुझसे कुछ महीनों की छुट्टी लेकर गांव चली गई। दरअसल बीमार तो वो थी ही, लेकिन अब इसके घर वालों ने उसकी शादी भी तय कर दी थी और शायद वो दोबारा कभी वापस नहीं आने वाली थी। मेरी मुलाजमा चली गई और उसका भाई बंगले के सर्वेंट क्वार्टर में ही रहने लगा। ज़्यादा लोग ही नहीं थे, इसलिए मैं ज़्यादा नौकरों का झंझट भी नहीं पालना चाहती थी। अगली सुबह फैसल नाश्ता लेकर कमरे के दरवाजे पर आन मौजूद हुआ। मैं रोज़ाना सुबह 10 करती थी। मैंने इसे कमरे के अंदर ही बुला लिया। मैं अभी तक नाइट ड्रेस में ही थी और बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसे देखकर उठ बैठी। वो मेरा नाश्ता साइड टेबल पर रखने के बाद सर झुकाकर खड़ा हो गया, जैसे मेरे अगले हुक्म का मुंतज़िर हो। मैं खामोशी से उसकी तरफ देखने लगी। वो 17 साल का था, लेकिन शायद गांव की आबो हवा ने उसे उम्र से ज़्यादा ही बड़ा कर दिया था। मैं रोज़ाना सुबह 10 बजे नाश्ता करती। वो एक भरपूर और तवाना मर्द नज़र आता था। जाने क्यों अचानक ही मुझे उसकी मौजूदगी से घबराहट महसूस होने लगी, क्योंकि इतने बड़े बंगले में वो मेरे साथ अकेला था और दूर दूर तक कोई नहीं था। ये सोचकर ही मुझे खौफ आने लगा कि मैं भी जवान हूँ और वो भी। मेरी खूबसूरती पर तो वैसे भी बहुत से आदमी मरते थे, कहीं फैसल की नीयत भी बदल न जाए। मैंने बिना सोचे समझे ही एक जवान लड़के को अपने पास रख लिया था, जबकि मुझे उस बात का ख्याल करना चाहिए था कि मैं खुद भी एक जवान बेवा हूँ और इतने बड़े घर में तनहा हूँ। मैंने फैसल को दिन भर के काम बता दिए थे और वो फ़ौरन ही कामों पर लग गया था, लेकिन मेरे दिलो दिमाग पर एक अजीब सा बोझ आ गया था। मैंने सोचा था कि किसी नई भरोसामंद मुलाजमा का इंतज़ाम कर लूँगी और फिर फैसल को निकाल दूँगी। मुझे अपने घर से आए काफ़ी दिन हो गए थे, लेकिन मेरे घर से अब तक कोई मुझे मिलने नहीं आया था। मेरे माँ बाप अपने पोते पोतियों में इस कदर मगन थे कि शायद इन्हें मेरी तन्हाई का एहसास भी नहीं रहा था। ससुराल वाले तो पहले ही मुझे नापसंद करने थे। इनके लिए मेरा होना ना होना बराबर ही था। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं मुलाजमा के लिए किससे कहूँ, और फिर इत्तेफाक से उसी दिन मेरी एक पुरानी दोस्त बानो मुझसे मिलने के लिए चली आई। वो शादी होकर बाहर मुल्क गई थी, अब छुट्टियों में वापस आई थी तो उसे मेरे बेवा होने की खबर मिली थी। मैं उसके गले लगकर फूट फूट कर रो पड़ी थी। मेरी बर्बादी की दास्तान सुनकर वो भी बहुत दुखी हो गई थी। काफ़ी देर हम दोनों ऐसे ही बातें करते रहे और फिर मैंने उसे बताया कि मैं अपने घर के कामकाज के लिए एक भरोसेमंद मुलाजमा ढूंढ रही हूँ। फैसल को देखकर कहने लगी, ये लड़का है तो सही और काम भी अच्छा कर रहा है, फिर तुम्हें क्या ज़रूरत पड़ी है नई मुलाजमा ढूंढने की। मैंने उसे अपने दिल में आने वाले वसवसों के बारे में बताया। कहने लगी, रशीद तुम भी क्या बेवकूफ़ों वाली बातें करती हो। खुद ही कह रही हूँ कि उसकी बहन सालों से तुम्हारी वफादार मुलाजिम है और फैसल भी बहुत शरीफ और खुद ही परेशान भी हो रही हो। मेरी मानो तो नई मुलाजमा की झंझट में ना पड़ो। आजकल की मुलाजमाएँ भी कुछ कम नहीं हैं, बेहिसाब छुट्टियाँ करती हैं और दूसरी बात ये कि एक घर की खबर दूसरे घर में पहुंचा देती हैं। तुम तो वैसे ही अकेली रहती हो, खुदा न खास्ता कहीं नई मुलाजमा तुम्हें नुकसान ही ना पहुंचा दे। बानो की बात सुनकर तो मैं मज़ीद परेशान हो गई। ठीक ही तो कह रही थी, फैसल पर तो मैं फिर ज़्यादा ही भरोसा करती थी, लेकिन बिल्कुल नई मुलाजमा पर कैसे भरोसा कर सकती थी।
जाते जाते बानो कहने लगी, अगर ऐसा ही है तो फैसल का टेस्ट लेकर दूध का दूध और पानी का पानी निकाल दो, हो जाएगा। बानो की बात मुझे कुछ समझ आ गई थी। उसका मशवरा मुझे ठीक लगा था। मैंने सोचा कि मैं फैसल का टेस्ट ले लेती हूँ। अगर वो पास हो जाता है तो मैं उसे हमेशा के लिए ही अपने पास रख लूँगी, क्योंकि ना ही उस बंगले को छोड़ने का मेरा कोई इरादा था और ना ही दूसरी शादी का। वैसे भी मुझे भी इस बात का यकीन आ गया था कि कुदरत ने मेरी किस्मत में औलाद नहीं लिखी, तो फिर दूसरी शादी करके भी मुझे क्या हासिल हो जाता। इसलिए मैंने अकेले ज़िंदगी गुजारने का फ़ैसला किया था और मेरे इस फैसले की वजह से मेरे माँ बाप मुझसे मज़ीद दूर हो गए थे। वो दोनों ही जल्द से जल्द मेरी दूसरी शादी के लिए दबाव डाल रहे थे और मैंने साफ साफ कह दिया था कि अब मेरी ज़िंदगी में किसी की मर्द की कोई जगह नहीं। तन्हा रहने का फ़ैसला भी कर लिया था, फैसल का इम्तिहान लेने का भी, और पैसों और इज़्ज़त दोनों ही मामले में मैं इसका टेस्ट करना चाहती थी। इसलिए शाम के वक्त मैंने जानबूझकर बहुत सारे पैसों से भरा बैग किचन के काउंटर पर छोड़ दिया और ख़ुद अपने घर से निकल पड़ी। मैं देखना चाहती थी कि फैसल उस बैग के साथ क्या करेगा। 2 घंटे तक मैं बाज़ार में घूमती रही। घर का जो भी ज़रूरी साजो सामान लेना था लेकर घर पहुंची तो वो बैग काउंटर पर मौजूद नहीं था। फैसल भी मुझे घर में कहीं नज़र नहीं आया। दिल बहुत ज़ोर से धड़का था। मैं सारा सामान रखकर अपने कमरे में आई तो ये देखकर हैरान रह गई कि वो बैग मेरे कमरे में रखा हुआ था। जल्दी से मैंने उसे खोलकर देखा तो इसमें सारे के सारे पैसे वैसे ही मौजूद थे। एक लम्हे के लिए मुझे सुकून हुआ कि फैसल की नीयत पैसों पर ख़राब नहीं है, लेकिन दूसरे ही लम्हे मुझे ख्याल आया शायद वो ये जानता ही ना हो कि इसके अंदर मौजूद पैसे हैं या नहीं। इसलिए मैंने दूसरी तरह से उसका इम्तिहान लेने का सोचा। रात होने से पहले फैसल सारे घर पर एक नज़र डालकर अपने क्वार्टर में सोने के लिए जाता था। मैंने जानबूझकर कुछ पैसे क्वार्टर जाने वाले रास्ते पर गिरा दिए। मुझे यकीन था कि ये पैसे फैसल की नज़रों में ज़रूर आएंगे। मैं अपने कमरे में आकर सुकून के साथ लेट गई थी। मुझे सुबह का इंतज़ार था। मैं देखना चाहती थी कि इस इम्तिहान में वो किस तरह पास होगा या फिर फैसल। मैं सोच रही थी कि सारी रात शायद मुझे इंतज़ार में नींद ही ना आए, लेकिन ये मेरी गलत फहमी साबित हुई। मुझे कमरे में आकर ज़्यादा देर ना गुजरी थी कि कमरे का दरवाज़ा बजने लगा। पहले तो मैं हैरान हुई, लेकिन फैसल की आवाज़ सुनकर मैंने उसे अंदर आने की इजाज़त दे दी। वो सर झुकाए हुए खड़ा था और मेरे आगे पैसे रख कर कहने लगा कि ये उसे क्वार्टर के रास्ते पर मिले हैं और ये उसके नहीं हैं। फैसल की वफादारी ने मुझे हैरान कर दिया था। वो पैसे तकरीबन लाख रुपए के करीब थे। मैंने फैसल से कहा कि ये पैसे मेरे भी नहीं हैं, तुम चाहो तो ये पैसे रख सकते हो। मैं उसे उसकी वफादारी का इनाम देना चाहती थी। फैसल हाथ जोड़कर कहने लगा, मैडम मैं हलाल का लुकमा खाता हूँ और हलाल ही खाना पसंद करता हूँ। ये पैसे आपके हैं या किसी और के, लेकिन ये मेरे नहीं हैं, इसलिए मैं इन्हें किसी सूरत नहीं रख सकता। वो खाली हाथ वापस चला गया और पैसे मेरे सामने पड़े रह गए थे। मेरा दिल इस बात पर राज़ी हो गया था कि फैसल की नीयत बिल्कुल साफ़ है। वो कभी भी मेरी किसी भी कीमती चीज़ को हाथ नहीं लगाएगा। अब सिर्फ एक ही चीज़ रह गई थी और वो थी हम दोनों के दरमियान की इज्जत। मैं अभी भी जवान थी और वो भी जवानी की दहलीज पर कदम रख चुका था। ऐसे में हमारा एक साथ बंगले में रहना ठीक नहीं था। ये बात मैं भी जानती थी, लेकिन मैं किसी गैर शख्स को अपने साथ नहीं रखना चाहती थी। अगर फैसल आखिरी मरहले को पार कर जाता तो वो हमेशा के लिए मेरा वफादार मुलाजिम बन जाता। और यही सोचकर मैंने सुर्ख रंग की साड़ी जेब तन की और 16 सिंगार कर लिया, जबकि बेवा होने के बाद से मैंने कभी इतना 16 सिंगार नहीं किया था। मैंने एक नज़र आईने पर डाली तो मैं क़यामत ढा रही थी। मेरी नज़रें अपने ही हुस्न पर नहीं ठहर पा रही थीं, तो फैसल कैसे मेरी इस खूबसूरती की ताब ला सकता था। मैं पूरी तरह तैयार होकर डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठ और फैसल से कहा कि वो शाम की चाय लेकर मेरे साथ ही बैठ जाए। फैसल सर झुकाए शाम की चाय लेकर आया तो मैं उसे ज़बरदस्ती अपने सामने बिठा लिया। उससे इसके बारे में सवाल पूछने लगी। वो कभी कभी मुझे नज़र उठाकर देखता, फिर फ़ौरन नज़र चुका लेता। मुझे उसका ये अंदाज़ बहुत अच्छा लगा था। मैंने एक दफ़ा भी नज़र भरकर उससे मुझे नहीं देखा था। मेरे हर सवाल का जवाब बहुत ही मुहज़्ज़ब अंदाज में दे रहा था। ऐसे लगता था जैसे वो इज़्ज़तदार और शर्मो हया का पैकर हो।
सच तो यही था कि मैं फैसल के किरदार से मरूब हो गई थी। वाकई वो एक बाकिरदार शख्स था, लेकिन मैं मज़ीद कुछ दिन और उसका इम्तिहान लेना चाहती थी। इसलिए हर दिन मैं नए लिबास पहनकर तैयार होती, कभी उसे ड्राइंग रूम में अपने पास बिठा लेती तो कभी गार्डन में। एक रात के वक्त मैं उसके क्वार्टर के पास पहुंच गई और उसे आवाज़ दी। वो भागा चला आया। मैं गुलाबी रंग की नाइटी पहने हुए थी। मुझे यकीन था कि फैसल मुझे एक नज़र भर कर ज़रूर देखेगा, लेकिन वो आज भी सर झुकाए खड़ा था। मैंने फैसल से कहा, मुझे नींद नहीं आ रही, वो मुझे काफ़ी बना कर दे। वो मेरे पीछे पीछे ही चला आया। मैं उसके आगे किचन काउंटर से लगकर खड़ी हो गई। मेरे बाल पूरी तरह खुले हुए थे और मेरी नज़रें फैसल पर ही जमी हुई थी, लेकिन वो पूरी तरह काफ़ी बनाने में मगन था। उसने काफ़ी बनाकर मेरे आगे रख दी और जिस तरह आया था उसी तरह वापस चला गया। उसके इस अंदाज ने मुझे पूरी तरह शॉक्ड कर दिया था। वो किस तरह मेरी खूबसूरती से नज़र चुरा गया था, ये बात मेरे लिए बिल्कुल अनोखी थी। शायद वो मेरा भरोसा जीतने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि आज तक मेरी ज़िंदगी में जितने भी मर्द आए थे वो जब मुझे देखते तो नज़र झपकना भूल जाते थे। एक शाम मैं ब्लैक कलर का खूबसूरत सा ब्लैक गाउन पहना और बालों को खोलकर पूरी तरह तैयार हो गई। मुझे इस बात पर यकीन आ चुका था कि फैसल मुझ पर नज़र नहीं डालेगा, इसलिए मैंने अपने लिबास को मज़ीद बेबाक कर दिया था। मेरी सफ़ेद रंगत इस स्याह लिबास में पूरी तरह खिल रही थी। मैं बिस्तर पर नीम दराज हो गई और मैंने जानबूझकर फैसल को कमरे में बुलवा लिया। वो सर झुकाए कमरे में आ गया था। मैंने उसे कहा कि मेरे सर में बहुत दर्द है, वो मेरा सर दबा दे। वो मेरे करीब आकर बैठ गया और अपने हाथों से मेरा मैं दिल ही दिल में सोच रही थी कि बस आज फैसल का इम्तिहान ख़त्म हो गया। वो बहुत ही बाकिरदार शख्स है और अब मुझे उसे मज़ीद आजमाने की ज़रूरत भी नहीं। लेकिन अचानक ही फैसल ने कुछ ऐसा किया कि मेरे होश उड़ गए। वो पूरी तरह बेकाबू हो चुका था। उसने मेरे पाँव के पास पड़ी बड़ी सी चादर उठाकर मेरे वजूद पर डाल दी और मुझसे दूर होकर खड़ा हो गया था। नज़रें झुकाए कह रहा था, मैडम, मैं अब मज़ीद आपके पास काम नहीं कर सकता हूँ। मैं एक शरीफ और इज़्ज़तदार लड़का हूँ, अपने नफ्स पर काबू रखता हूँ, लेकिन आपकी बेबाकी और लिबास ने मेरी ईमान को भटका रहे हैं और मैं एक मर्द हूँ और कुदरती तौर पर सनफ़े मुखालिफ की तरफ कशिश रखता हूँ। लेकिन आज तक मैंने अपने किरदार को पूरी तरह बचा कर रखा है, लेकिन अब ये मेरे लिए बहुत मुश्किल हो चुका है। मैं और आप इस बंगले में तन्हा रहते हैं। अब मुझे ऐसा महसूस होने लगा है कि जैसे हमारे दरमियान तीसरा शैतान आ चुका है। मुझे इसी बात का डर था कि अभी तक तो मैंने खुद पर काबू रखा है, लेकिन कहीं किसी दिन मैं अपने नफ्स का गुलाम ना बन जाऊं, कोई ऐसी हरकत न कर बैठूं कि ज़िंदगी भर अपने आप से भी नज़र ना मिला सकूं। वो लंबा चौड़ा जवान मर्द मेरे आगे खड़ा आंसू बहा रहा था और मैं शर्मिंदगी के गहरे समंदर में गर्क हो गई थी। मैं तो इज्जत से अपना काम कर रहा था, लेकिन मैं ही उसे वरगलाने जैसी हरकतें करने लगी थी। न जाने मैं इस इम्तिहान में क्यों पड़ गई थी या उसका इम्तिहान क्यों ले रही थी। अब मुझे एहसास हो रहा था कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी थी। वो ठीक ही तो कह रहा था, अगर किसी कमज़ोर लम्हे में वो अपने आप पर काबू न रख पाता और मेरे साथ कुछ गलत कर बैठता तो मैं अपनी इज्जत भी गंवा बैठती, उसे भी बदकिरदार समझ लेती, जबकि गलती तो सरासर मेरी अपनी थी। वो वापस जाने की इजाज़त मांग रहा था। मैंने उसे हाथ जोड़ दिया और उससे कहा, मुझे माफ़ कर दे, मैं तो बस इसका इम्तिहान लेना चाहती थी, लेकिन खुद भी नाकाम रही थी। मैं उसके आगे खुद को बहुत छोटा कमतर महसूस कर रही थी। फैसल कहने लगा, मैडम, आप खूबसूरत भी हैं, जवान भी। आपको मेरे जैसे लड़के को मुलाजिम रखने की बजाय किसी अच्छे और नेक शख्स से शादी कर लेनी चाहिए। मैंने उसे बताया कि अब मेरा एतबार रिश्तों पर से उठ गया है, क्योंकि मैं जिस क्लास में रहती थी वहाँ रिश्तों और जज्बात की कोई हैसियत नहीं थी। मेरे अपने माँ बाप 2 दिन पहले ही कुछ महीनों के लिए मेरे बड़े भाई के पास अमेरिका चले गए थे। वैसे भी वो लोग जब तक जहाँ थे तब भी उनका होना ना होना मेरे लिए बराबर था। फैसल कहने लगा, आज नहीं तो कल आपको अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। मैं कुछ अरसे तक आपके पास मुलाजिम रहने के लिए राज़ी हूँ, लेकिन आप किसी दूसरे मुलाजिम का इंतज़ाम जल्द कर लीजिएगा। मैं गहरी आह भरकर रह गई थी। मैंने अपनी नादानी में एक वफादार मुलाजिम को खो दिया था। मैं जान गई थी कि अब वो किसी भी सूरत हमेशा के लिए मेरे पास नहीं रहेगा।
کچھ دنوں بعد فیصل گاؤں کی ایک لڑکی کو میرے پاس ملازم رکھ گیا اور خود مجھ سے الوداعی ملاقات کر کے ہمیشہ کے لیے گاؤں لوٹ گیا تھا۔ آج بھی میں جب بھی فیصل کو یاد کرتی ہوں تو میری آنکھیں بھیگنے لگتی ہیں۔ وہ آج کے دور میں ایک نیک سیرت انسان تھا۔ اس نے کئی دفعہ موقع ملنے کے باوجود بھی کبھی مجھ پر بری نظر نہیں ڈالی تھی۔ ہاں، کبھی کبھی ہم اپنی نادانی میں کچھ غلط کر دیتے ہیں، لیکن احساس تب ہوتا ہے جب چیزیں ہمارے ہاتھ سے نکل جاتی ہیں۔ پیارے دوستو، کیا آپ نے بھی زندگی میں کبھی کوئی ایسی غلطی کی ہے جس پر آپ کو بعد میں پچھتانا پڑا ہوگا؟ کمنٹ میں ضرور بتائیں۔